Assalamu alaikum. Today the topic under discussion is the survey of the reptiles. What should be your learning outcomes? You must enable to answer the characteristics of the non-avian reptiles. Compare the characteristics. Non-avian reptiles में सारे reptiles आएंगे और जो avian reptiles होते हैं उनमें birds include होते हैं. आपने कंपेयर करनी है characteristics testudines और crocodilia की justify the inclusion of superficially different snakes and lizards in a single order schemata. अब snakes और lizard को single order schemata के अंदर क्यों रखा गया, आप इसको भी justify कर सकते हो. These are the general characteristics of the reptiles. They are characterized by the skull with the one surface, occipital condyle, for articulation with the first neck vertebrae, respiration by the lungs. They have metanephric kidney, they have internal fertilization and amniotic eggs are present in these animals. Reptiles also have a very dry skin with a keratinized epidermal skin. Well, now what is keratin? It is a resistant protein found in the epidermally derived structures of the amniotes. Mostly skin is formed from the epidermis. It is a hard and resistant protein. Now what is the function of the keratin in the epidermis? It is protective, and when it is chemically bound to the phospholipids, it prevents the water loss across the body surface. Previous class from the reptilia is the amphibia, and amphibians have a moist skin, mostly water loss occurs from their skin. But in case of reptiles, I already told you that they have dry skin and they have hard scales on their skin. So loss of water is not possible from their skin. If the water loss is not possible, then what kind of structure is present in their skin? Keratin is chemically bound with the phospholipids, and it prevent the water loss from the body surface. Members of the three of the four orders described here living on all the continents except Antarctica. Okay, there are four orders present in the class Reptilia, and they are present around the worldwide except Antarctica. Antarctica have a very extreme environment, and reptiles are the heterotherms. They maintain their body temperature according to the external environment. So this is not possible for these animals to live in the extreme cold environment of the Antarctica, and definitely it will affect their metabolism. However, reptiles are a dominant part of any major ecosystem, only in the tropical and the subtropical regions. Tropical regions are present just around the equator, which is the line dividing the world into two equal halves, and the areas next to the tropical are the subtropical regions. Order testudines, most important one from the examination point of view. Testudines is one of the traditional orders of extinct reptiles. They are the turtles. The members are the turtles. Approximately 300 species are known. And what are their characteristics? They have bony shell. This is our common observation. Limbs internally articulate to the ribs. इनके जो limbs हैं वो अंदर इनके shell में जो ribs होती हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनका जो shell है वो इनकी body का part है, and a keratinized beak rather than teeth. और इनमें teeth नहीं होंगे बल्कि keratinized beak होगी. Dorsal portion of the shell is carapace. This is most important from objective point of view, which forms from the fusion of the vertebrae, expanded ribs and bones in the dermis of the skin. अब carapace बनता कैसे है? वर्टिब्रे जो है वो फ्यूज़ करेंगे, रिब्स एक्सपेंड होती हैं और उनकी फ्यूजन होगी, बोन्स जो मौजूद होती हैं डर्मिस ऑफ स्किन में उनकी फ्यूजन होती है. केराटिन कवर द बोन ऑफ द कैरापेस. अब जो इनका कैरापेस है उसको फिर ऊपर से कौन कवर करेगा? केराटिन. वेंट्रल पोर्शन जो है शेल का, दैट इज नोन एज द प्लेस्ट्रॉन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्म्स फ्रॉम द बोन ऑफ द पेक्टोरल गर्डल एंड द डर्मल बोन. ये पेक्टोरल गर्डल की बोन्स और डर्मल बोन्स यानी स्किन की जो डर्मिस का रीजन होता है उसमें जो बोन्स होती हैं उससे बनता है. एंड केराटिन आल्सो कवर इट. इन सम टर्टल्स सच एज नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स टर्टल, carapace the shell has a flexible areas or hangs that allow the anterior and posterior edges of the plastron to be raised. अब नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स टर्टल के अंदर शेल के अंदर फ्लेक्सिबल रीजन्स होते हैं या हिंग्स होते हैं, जैसे दरवाज़ों में हिंग्स होते हैं ना, जिसकी वजह से दरवाजे मूव करते हैं. इसकी वजह से प्लेस्ट्रॉन के अगले और पिछले जो रीजन्स हैं वो
रेज हो सकते हैं। द हिंग अलाउ द शेल ओपनिंग टू क्लोज व्हेन द टर्टल विथड्रॉ इनटू द शेल। अब हिंग का और क्या काम है, जिसको कहते हैं टर्टल अपना हेड और अपने लिम्स अंदर कर लेता है ना शेल के, तो उसके बाद उस ओपनिंग को बंद भी किया जाता है, तो वो इन हिंग्स की वजह से पॉसिबल है। टर्टल्स हैव 8 cervical vertebrae and can be articulated into S-shaped configuration which allow the head to be drawn into the shell. टर्टल्स के पास 8 cervical vertebrae हैं और ये एस शेप कन्फिग्रेशन में मौजूद होते हैं, और इसका ये क्यों ऐसे होते हैं, ताकि जब हेड ने शेल के अंदर जाना होता है तो उसमें हेल्प करें। टर्टल का लॉन्ग लाइफ स्पैन है, मोस्टली इनकी जो सेक्शुअल मेचोरिटी होती है वो तकरीबन 7 से 8 ईयर्स तक में होती है, और 14 ईयर्स तक ये ज़िंदा रहते हैं। लार्ज टॉर्टाइजेस जो डार्विन को मिले थे गैलापागोस आइलैंड्स पे, वो तकरीबन 100 साल तक ज़िंदा रहते हैं। टॉर्टाइजेस जो हैं ये इंटायरली टेरेस्ट्रियल एनिमल है और इनके पास वेबिंग नहीं है। टर्टल और टर्टाइज का डिफरेंस ये होता है कि इनकी जो होते हैं ना डिजिट्स, टर्टल में वो वेब्ड होते हैं जैसे बत्तख के होते हैं जो तैरने में हेल्प करते हैं, और जो टॉर्टाइजेस होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, उनमें वेब्ड फीट नहीं होंगे। ऑल टर्टल्स आर ओविपेरस। फीमेल यूज़ देयर हाइंड लिम्ब टू एक्सकवेट नेस्ट इन द सॉइल। फीमेल अपने हाइंड लिम्ब से नेस्ट बनाती हैं, सॉइल में खोदती हैं। देन दे ले एंड कवर द सॉइल एग क्लच ऑफ 5 to 100 एग्स। डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन 4 वीक से 1 ईयर तक होती है, और पेरेंट इसमें अटेंड नहीं करता एग्स को इस टाइमिंग में। एग्स इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी पेरेंटल केयर नहीं है हैचिंग के टाइम पे। इन द रिसेंट ईयर टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम हैव बीन इनएक्टेड। इनका एक तो ग्रोथ रेट स्लो है, दूसरा लॉन्ग जो विनाइल पीरियड है जिसमें ये वल्नरेबल होते हैं एक्सटिंक्शन के, ये इनकी डेथ हो सकती है। दूसरा टर्टल पे हंटिंग की जाती है और प्रीडेशन बहुत ज़्यादा रेट हो गया, जिस डॉग्स हंट करते हैं इस पर, और दूसरे एनिमल्स भी, तो इस वजह से ये सीवियरली थ्रेटन्ड है। अच्छा, सी टर्टल, फ्रेश वाटर टर्टल, टर्टाइजेस, इनका इक्वल रिस्क है। कंजर्वेशन ऑफ टर्टाइजेस एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स इज complicated by the cultural practices that demand turtle for the food and medicine. इनकी कंजर्वेशन इसलिए इशू हो रहा है कि कल्चरल प्रैक्टिस हैं जिसमें टर्टल एज अ फूड और मेडिसिन यूज़ होती है। कंजर्वेशन ऑफ सी टर्टल की कम्प्लिकेटेड है। एक तो इनके जो होम रेंजेस है वो 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं ओशन में, तो प्रोटेक्टिव एरिया जो है वाटर में, प्रोटेक्टिव एरिया मस्ट इंक्लूड वाटर्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट नेशंस। अब देखें ना, आप एक कानून अगर अप्लाई करते हैं तो वो आप मुख्तलिफ नेशंस पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, चले एक नेशन उसके साथ एग्री कर गई है, बाकी तो नहीं करेंगी। ये देखें कि टर्टल के जो ये शेल है उसका ऊपर वाला पार्ट इसे कैरापेस कहते हैं, ठीक है। ये टेस्ट्यूडाइन्स, ये टर्टल है। अब इसकी ये देख लो फोर वेब्ड है, ये देखो इसके हाइंड लिम्स भी वेब्ड है। अब ये देखें इसका जो नीचे वाला शेल का पोर्शन होता है वो प्लेस्ट्रॉन कहलाता है। अब ये देखो इसके बोन्स और ये जो सारी है रिब्स वगैरह, ये इसके शेल का ही पार्ट है, ये नहीं है कि ये शेल से अलग है। ये देखें डॉर्सल व्यू कैरापेस का आपको दिखा रहे हैं, और ये वेंट्रल व्यू दिखा रहे हैं कैरापेस का। इसमें वर्टेब्री और बोन्स, सॉरी ये डी जो सी जो है ये प्लेस्ट्रॉन है, और ये डॉर्सल व्यू ऑफ प्लेस्ट्रॉन है, यानी अगर आप ऊपर से देखें, और ये वेंट्रल व्यू ऑफ प्लेस्ट्रॉन है। और ये जो है ए और बी के अंदर आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कैरापेस। ओके, दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।